Welcome back students to social studies class. We are continuing with the final part of civics lesson number 5, the Panchayati Raj. This is the third video. Children, in the first two videos of this lesson, I have made you understand about the Panchayati Raj, the meaning of Panchayati Raj, the need of Panchayati Raj, and also the structure of Panchayati Raj at different levels. That is the village level, block level and the district level. I have already explained you in the second part of the video regarding the village level children. In village level, it works by the three committees, that is a Gram Sabha, Gram Panchayat and the Nyaya Panchayat. In this video, we will start with the block level, that is the second level of Panchayati Raj. The basic level is Gram Panchayat village level, and the second level, that is a Taluka level, or we say the block level, that here the Panchayat Samiti works, and our page number is 244. The block Samiti has different names in different states but performs the same role everywhere. It is known as Panchayat Samiti also. It is known as what? Panchayat Samiti, and in different states it is referred to by different names. The number of members in the block Samiti is not fixed. It varies in the number of villages under it. मतलब एक ब्लॉक कैसे बनता है? 8-10 विलेज या 5-6 विलेज को बनाकर बनता है एक ब्लॉक. तो उन सब विलेज को जो एडमिनिस्टर करते हैं 8-10 विलेज को, उनसे बनता है ब्लॉक समिति. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ विलेजेस. कितने उसमें विलेजेस इंक्लूडेड है एक ब्लॉक में, उस हिसाब से मेंबर्स भी इलेक्ट होंगे. It varies with the number of villages under it. It consists of about 20 to 30 villages depending on the area of the population of a particular village. So it comprises of the 20 to 50 villages. The members of the block samiti are the sarpanches of the village panchayat. तो जो 20 या 30 विलेज सब जो है उनसे एक ब्लॉक बनता है, तो उनके जितने भी सरपंच है, हर एक विलेज में, हर एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, तो उनके टोटल जो सरपंच होंगे दे विल बिकम द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति. और कौन कौन इंक्लूडेड होगा इसमें? एक तो सरपंच ऑफ ऑल द विलेजेस, मतलब अलग अलग विलेज के सरपंच. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो एमपी होंगे वो स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो वो स्टेट से बिलोंग करेंगे. लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा एंड विधान परिषद, इलेक्टेड फ्रॉम देयर एरियाज, वो एरिया में से. उसमें से 1/3 of the total seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and the women, and for a fair representation in the block samiti. So women, block, scheduled caste and scheduled tribes, the members of parliament, the members of legislative assembly, members of legislative council, MLA, MPs, MLCs and also the सरपंच of the village. इन सब से बनेंगे क्या? एक ब्लॉक समिति बनेगी, यानी ब्लॉक समिति के मेंबर्स. द मेंबर्स फ्रॉम विद इन द ब्लॉक समिति, अभी जितने भी समझो 20 या 30 मेंबर्स बन गए, 40 मेंबर बन गए, दे विल इलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन. मतलब उनके हेड को बोलेंगे चेयरमैन और उनके सेकेंड हेड को बोलेंगे वाइस चेयरमैन. द चेयर पर्सन इज ऑल्सो नोन एज वॉट? ब्लॉक प्रमुख. वाइल द नेक्स्ट पेज, कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज 245. whereas the vice chairperson is known as Upapradhan. The block samiti serves a tenure of 5 years. Mainly these members are elected for a period of 5 years. कोई भी इलेक्शन होंगे अपने डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में, देयर टेन्योर मतलब उनका जो काम करने का पीरियड होता है, दैट इज़ व्हाट? 5 years. सो जितने भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स इलेक्ट होंगे उनमें से जो हेड होगा उसको बोलेंगे चेयरपर्सन. उनका बोलेंगे हम लोग व्हाट वी से? ब्लॉक प्रमुख एंड उप प्रधान. What are the plans to be implemented by the block samiti are, with the help of the government functionary called the block development officer, BDO. तो ये ब्लॉक समिति को कौन काम देगा, ब्लॉक समिति का काम कौन मैनेज करेगा? उनके भी अलग से एक ऑफिसर होंगे, उसको बोलेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. यानी जो पूरे ब्लॉक का, ब्लॉक यानी उसमें 20 से 50 विलेजेस आ जाएंगे. एक ब्लॉक में कितने विलेज आएंगे? 20 से 50 विलेज आएंगे. तो उनकी जो समिति बनेगी उसको बोलेंगे ब्लॉक समिति. लेकिन उनको कौन सब काम सुपरवाइज करेगा? दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. द BDO वो कोई इलेक्ट नहीं करता, ही इज़ अपॉइंटेड डायरेक्टली, ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट.
द BDO इज कंसिडर्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द समिति, मतलब पूरे सेक्रेटरी, पूरा काम काज समिति का देखना. द BDO एंड द ब्लॉक प्रमुख आर टू पीपल हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक समिति. दो जन का मेन रोल है जो पूरे विलेज का, जो इतने सारे विलेज को जो कंट्रोल करेंगे, इतने सारे विलेज का जो सब फंक्शनिंग देखेंगे. ब्लॉक प्रमुख यानी चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक समिति एंड द BDO यानी मेन, वो उधर का ऑफिसर नहीं होगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति? ब्लॉक समिति कोऑर्डिनेट्स विद द पंचायत एंड सुपरवाइजेस देयर वर्किंग, मतलब सारे जितने भी पंचायत है उनसे उनके विलेज का जो काम होगा वो देखेंगे कि उनके विलेज में वो सरपंच क्या क्या काम कर रहे नहीं कर रहे, दैट कोऑर्डिनेशन. द ब्लॉक समिति ऑर्गेनाइजेस एक्सपर्ट्स हु अचीव इट फॉर अ बेटर फंक्शनिंग इन वेरियस फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मतलब एक एग्रीकल्चर में जो स्पेशल होगा फील्ड में उसका जो ऑफिसर होगा उसको एक अपॉइंट करेंगे. हेल्थ में मतलब जो अपने अपने फील्ड में मास्टर होंगे. एजुकेशन, दीज एक्सपर्ट्स, उनको बोलेंगे एक्सपर्ट्स, मतलब उनको सब एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज होगी या एजुकेशन के बारे में नॉलेज होगी या हेल्थ के बारे में नॉलेज होगी, वैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे. हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, वैसे. दिस एक्सपर्ट्स पोस्टेड एट द ब्लॉक लेवल आर नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स. इन लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उनको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफिसर्स. रिमेंबर चिल्ड्रन, दे वर्क इन देयर ओन डिपार्टमेंट. हेल्थ वाले हेल्थ में काम करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर ओनली वर्क्स फॉर द एजुकेशन का डेवलपमेंट के बारे में. ऑल दिस टू ऑब्टेन फंड्स, ग्रांट्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो ब्लॉक समिति डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे. टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेज, लैंड एंड कैटल, इन सब पे से टैक्सेस लेना. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति चिल्ड्रन? उनको पैसे कहाँ से आएंगे? ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट देगी, वो ग्रांट्स. एंड ऑल्सो टैक्सेस फ्रॉम द बिजनेस और ट्रेड और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे हम लोग कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको लेकर जो भी उनका फ़ायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा, दैट विल ऑल्सो बी टेकन बाय द ब्लॉक समिति. सो दिस वॉज द ब्लॉक समिति विच कंट्रोल्स द ब्लॉक, यानी ब्लॉक यानी 50 से 20 to 50 विलेजेस को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक. सो आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लॉक लेवल में ब्लॉक समिति कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस and how does it get the income. Now we go to our last topic. Last topic of this lesson is what? Zilla Parishad. It works at the district level. We are on page 245 children. The Zilla Parishad is at the apex. Apex means एकदम height पे. Height मतलब क्या? लेवल डिसाइडेड होते हैं. ग्राम पंचायत है ग्रास रूट लेवल पे, नीचे मतलब विलेज लेवल पे. और डिस्ट्रिक्ट कब खत्म होती है? जब सारे विलेज पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उसको बोलते हैं एपेक्स लेवल. The Zilla Parishad is at the top level, that is the apex level of the Panchayat Raj system, which is a 3-tier system in India. 3-tier system. 3 tier. What are the 3 tiers? Which are the 3 tiers? I explained you. Village level, block level, district level. Again I am repeating. Village level, block level, district level. Village level पे कौन काम करेगा? ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के साथ और कौन कौन है? ग्राम सभा और न्याय पंचायत. ब्लॉक्स ब्लॉक लेवल पे कौन काम करेगा? ब्लॉक समिति. उसको हेल्प करने के लिए कौन है? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी, ही और शी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. अभी थर्ड लेवल अपना है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज़ द जिला परिषद. क्या है वो? जिला परिषद. द जिला परिषद उनके जो चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी जितने भी चेयरमैन होंगे, समझो अपने पूरे जितने भी ब्लॉक है, 20-30 ब्लॉक है या 10 ब्लॉक है, उसके जितने भी चेयरमैन होंगे, दे आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. सिमिलर टू द ब्लॉक समिति, ऐसे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स हैं, फिर मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ऑल्सो वुमेन कैंडिडेट्स. ये सब भी इंक्लूडेड किसमें होंगे? जिला परिषद में. तो जैसे ब्लॉक समिति में जितने भी विलेज के सरपंच थे वो ब्लॉक समिति के भी मेंबर थे, वैसे ही जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं वो सब जिला परिषद के भी मेंबर माने जाएंगे चिल्ड्रन. द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इलेक्ट अ प्रेसिडेंट. अभी जितने भी मेंबर्स होंगे 30-40 जिला परिषद के मेंबर्स, उन लोग आपस में किसको इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. इफ दिस पीपल डू नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज सेटिस्फैक्टरली दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोजीशन. जैसे मैंने आपको आगे बताया था, अगर उन लोग काम नहीं करेंगे बराबर 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया, इफ दे डोंट वर्क प्रॉपरली देन दे कैन बी रिमूव बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम. ओके.
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद? अभी जिला परिषद बन गई. जिला परिषद कैसे बनी? जितने भी ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन हैं वो आ गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन. ओके, अब उन लोग क्या काम करेंगे? सो विल सी द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद. टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द विलेज पंचायत एंड द ब्लॉक समिति, यानी ब्लॉक समिति में सब विलेज का काम बराबर हो रहा है, हर एक विलेज में कैसा काम हो रहा है, उनका फंक्शन देखना, कोऑर्डिनेशन. To inform the state government about the progress of the work done by the village panchayat and the block samiti. मतलब उन लोग लिंक है, they are the link between the state government and the ग्राम पंचायत and the block samiti. उनका पूरा मैसेज जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा मैसेज जाता है विलेज ग्राम पंचायत एंड दी ब्लॉक समिति. दे एक्ट एज अ लिंक. टू प्रिपेयर डेवलपमेंटल प्लान्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट कैसे आगे बढ़े, उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम कैसे हो, उनका ज़िला कैसे आगे बढ़े, वो डिस्ट्रिक्ट का काम करना है. टू सुपरवाइज द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल 5 ईयर प्लान्स, यानी हर एक स्टेट जैसे अपने गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है. फॉर एग्जाम्पल इन अवर गुजरात स्टेट देर आर 33 डिस्ट्रिक्ट. तो अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेस ज़रूरी है. खाली एक डिस्ट्रिक्ट जैसे खाली वलसाड डिस्ट्रिक्ट अगर अपना प्रोग्रेस करेगा तो पूरा गुजरात प्रोग्रेस नहीं करेगा. ऑल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 होना चाहिए. एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी हैविंग गुड प्रोग्रेस. तो वो नेशनल जो 5 साल का प्लान बनता है उस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना लेवल में काम होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम ऑन पेज, लास्ट पेज, that is page 246, not last page children. The last topic we are doing, sources of income of the जिला परिषद. कहाँ से मिलते हैं उनको? एक तो गवर्नमेंट में से फंड्स मिलेंगे. ग्रांट्स मतलब फंड, गवर्नमेंट फंड देती है. प्रॉपर्टी रेंट यानी जितने भी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो उनको रेंट मिलता है. देन टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्सेस होते हैं. ऑल दिस इज़ द इनकम ऑफ द जिला परिषद. अब ये इनकम क्यों चाहिए? जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम करने तो सबके लिए पैसे चाहिए. करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. सो दैट कम्स फ्रॉम द रेंट और दैट कम्स फ्रॉम द टैक्सेस चिल्ड्रन. ओके, अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों हर एक लेवल पे गवर्नमेंट होना ज़रूरी है? विलेज लेवल में भी गवर्नमेंट चाहिए. एक क्या दिल्ली गवर्नमेंट इनफ नहीं है? एक स्टेट गवर्नमेंट क्या इनफ नहीं है? नो. एवरी क्यों रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है? बिकॉज महात्मा गांधी हैज़ ऑफन पॉइंटेड आउट दैट there are various necessities of the villagers which need to be taken care of. For example, maintaining law and order. Therefore, an authoritative force should be there to check into this law and order issues. मतलब हर एक विलेज में सुख शांति हो, लॉ ऑर्डर हो, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने पॉइंट आउट किया है. क्या लिखा है? और इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज, मतलब इंडिया की पहचान उसके विलेज से है, सिटी से नहीं है. तो अगर इंडिया के विलेज को आप अच्छा रखोगे तो इंडिया की पहचान भी अच्छी हो जाएगी. सो इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस एंड अनलेस विलेज लाइफ कैन बी मेंटेन्ड और व्हाट वी से रिवाइटलाइज्ड और इम्प्रूव्ड, द नेशन एज अ होल कैन हार्डली कम अलाइव. मतलब अगर आप विलेज को जिंदा नहीं रखोगे, विलेज लाइफ को प्रॉपर नहीं रखोगे तो इंडिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. दिस आर द कोटेशन और द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी. सो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ विलेज. ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. तो पुलिस का काम है, जज का काम क्या है? सी द SHO, उसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर. हाउ लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन एट द विलेज लेवल. देखो विलेज मतलब खाली विलेज नहीं, विलेज, ब्लॉक, ज़िला, तो उसमें कौन है? स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर. द SP इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस हु हैंड्स द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट. ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू 5 to 6 ब्लॉक्स. DSP यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस का हेड होता है, पुलिस का मेन होता है, उसको बोलते हैं SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और उनके नीचे जो काम करते हैं वो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP. कंट्रोल्स ईच ब्लॉक, उनके अंडर 5-6 ब्लॉक. पूरे डिस्ट्रिक्ट को पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को 6 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं. किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए. और हर एक ब्लॉक में खुद तो SP तो एक होता ही है, मेन होता है, और हर एक ब्लॉक में 5 से 6 उन लोग DSP अपॉइंट करते हैं. दीज आर कॉल्ड थाना. क्या बोलते हैं उसको? थाना, पुलिस थाना. द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लुक्स आफ्टर ईच थाना. एक एक थाना में कौन होता है? इंस्पेक्टर और पुलिस. देर आर ऑल्सो हेड कॉन्स्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हु वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. मतलब मेन होता है पुलिस, उसके अंडर पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सब
पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इस तरह से। एट द रूरल लेवल, हम लोग बात कर रहे हैं विलेज लेवल, देयर इज़ अ चौकीदार, क्या बोलते हैं उनको, चौकीदार बोलते हैं, वॉचमैन बोलते हैं उनको, पुलिस नहीं बोलते। हु लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज, किसकी बात हो रही है, विलेज लेवल की। इन केस ऑफ अ मेजर ऑफेंस, बहुत बड़ी कोई गुनाह हुई है, अ कंप्लेंट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस स्टेशन, सबसे पहले कंप्लेंट कहाँ जाएगी, पुलिस स्टेशन, उसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या तो आप कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट लेकर जाओगे, उन लोग पूरा नोट डाउन करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, उसको बोलते हैं FIR। क्या बोलते हैं उसको, FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। समझो मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, वॉट एवर इट इज़, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है पहले, बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, उसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस, द रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय द विक्टिम, विक्टिम यानी जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, मर्डर हुआ है या उसकी फैमिली में कुछ चोरी हुई है, तो उन लोग जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाएंगे, उसको बोलते हैं FIR, विच इज़ ऑलवेज गिवन इन राइटिंग। राइटिंग में नहीं हो ना, तब तक कोई पुलिस वाले काम करेंगे नहीं। आफ्टर द FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड, द पुलिस स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही पूरी कार्यवाही या तहकीकात शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है चिल्ड्रन, दैट आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अभी मेंटेनेंस, ये तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन कौन है, SP है, DSP है, पुलिस है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इनफैक्ट FIR के बारे में आपको बता दिया, ये सब होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अब लैंड रिकॉर्ड, आपको सबको पता है कि लैंड कितनी किसने कितनी खरीदी है, अपना हर एक अपने घर का भी रिकॉर्ड होता है, अपने पास पेपर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी लगती है जब हम लोग नया घर लेते हैं या घर बेचते हैं, तो हम लोग को पेपर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं दूसरे के नाम पर, तो इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी। कौन रखता है, पटवारी। और लैंड रिकॉर्ड का बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चरल लैंड का, किसकी कितनी ज़मीन है, उस पर से कितना टैक्स कलेक्ट होगा, ऑल दिस हैज़ टू बी मेंटेन बाय पटवारी। इन रूरल एरियाज लैंड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यानी सब रेंट है जो टैक्स है वगैरह वो लैंड पे कलेक्ट होता है। सो डिस्प्यूट्स ओवर लैंड रिलेटेड मैटर्स ऑफन अराइज इन विलेजेस, तो लैंड के ऊपर बहुत झगड़ा होता है कि यहाँ से ये लैंड मेरी इतनी थी, ये इसने ले ली, वॉट एवर इश्यूज आर देयर आर बिकॉज ऑफ द लैंड चिल्ड्रन। फॉर रिजॉल्विंग सच इश्यूज द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, मतलब एक ही ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर की पूरी लिस्ट है कि इसके पास जाकर अपने को, हायरार्की मतलब लेवल वाइज ऑफिसर होते हैं गांव में, कि इसके पास हम लोग का लैंड रिकॉर्ड होगा, ये अपना लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। हायरार्की मतलब पूरा लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। Come on the next page children, last page 247 now. At the village level, पटवारी appointed by the government is responsible for measuring land. पटवारी का क्या काम है, लैंड मेजर करना, किसके नाम पे कितनी ज़मीन है, एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट। कितनी बार अपन नया ज़मीन खरीदते, कभी बेचते, तो उस सबका रिकॉर्ड कहाँ होता है, कम हुई ज़मीन, बढ़ गई ज़मीन, ऑल दिस इज केप्ट बाय दी पटवारी अंडर वेरियस विलेजेस। तो एक पटवारी का काम है पूरा लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ही इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बैरन लैंड, मतलब खाली ज़मीन, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड अंडर क्रॉप्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करना, जहाँ से क्रॉप्स उगते हैं, चाहे वो खाली ज़मीन हो उसके भी टैक्स लगेगा, और अगर एग्रीकल्चर ज़मीन हो उसका ज़्यादा टैक्स लगेगा। इट इज़ द पटवारीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एंड अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया, अपडेट मतलब किसी ने लैंड खरीदी, किसने लैंड बेची, उसका रिकॉर्ड पूरा रखना पटवारी का काम है। द पटवारी इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, लेखपाल और कर्मचारी इन अदर स्टेट्स। सब स्टेट्स में पटवारी का अलग अलग नाम है, मेन नाम है पटवारी, उसको लेखपाल भी बोलते हैं और कर्मचारी भी बोलते हैं। अभी पटवारी के ऊपर होता है नायब तहसीलदार। पटवारी का रिकॉर्ड कौन चेक करता है, पटवारी ने सब काम बराबर किया है कि नहीं, कौन चेक करता है, नायब तहसीलदार। द नायब तहसीलदार इज पोस्टेड एट द ब्लॉक लेवल। कौन से लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल। अ तहसीलदार हेड्स द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एट द सब डिविजनल लेवल, उसके नीचे होते हैं तहसीलदार। अ सब डिवीजन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया फॉलिंग बिटवीन अ डिस्ट्रिक्ट एंड अ ब्लॉक, यानी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के बीच में होते हैं, क्या होता है, तहसीलदार काम करता है, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। A district collector is posted at the top of hierarchy of officers. So collector, देखो जो लैंड रेवेन्यू का जो मेन होता है, पटवारी के ऊपर भी, नायब तहसीलदार के ऊपर भी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इज पोस्टेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ ऑफिसर। हायरार्की मतलब पूरी लिस्ट होती है ऑफिसर्स, उसमें टॉप पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC, एंड ही इज द इंचार्ज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, एंड द DC डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है चिल्ड्रन, उसको क्या नाम है, डेप्यूटी कमिश्नर उसको बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलेंगे, उसको और क्या बोल सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये सब काम कौन करेगा, यानी वो हेड है डिस्ट्रिक्ट का,
ऑल दिस डिपार्टमेंट लैंड रिकॉर्ड में. एंड एक्सरसाइज इज जुडिशियल पावर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी अगर कुछ जजमेंट भी देना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देंगे. हिस्टोरिकली द प्राइमरी ड्यूटी वॉज टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस. मेन क्या था काम उनका? लैंड टैक्स कलेक्ट करना. हैंस उनको बोला है कलेक्टर. क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. क्यों बोला है? क्योंकि उन लोग को लैंड के ऊपर से टैक्स लेना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है. सो इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सी चिल्ड्रन, you go through this video properly 2-3 times, read the textbook properly. So now we come to the end of the lesson. I'll just read the summary points here, children. See, understand properly, children. If you have any doubts, you can ask on the WhatsApp group. The concept behind the Panchayat Raj is that the people in the village should be able to take the responsibility of governing themselves. क्यों पंचायती राज जरूरी है? क्योंकि जो विलेज में रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा पता है. हम जहाँ रहते हैं उस एरिया के प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा वाकिफ़ है, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए ये कॉन्सेप्ट को लेके पंचायती राज बना है कि हर एक लेवल पे एक एक गवर्नमेंट होना चाहिए. ओके, बार बार आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि ये विलेज में क्या हो रहा है. हर विलेज में अगर गवर्नमेंट होगा, दे नो द प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, दे नो व्हाट आर दी न्यू थिंग्स टू बी डन इन दैट विलेज और एट द ब्लॉक लेवल. ओके, द 3 main bodies of the Panchayati Raj are Gram Panchayat at the village level, Block Samiti at the block level, and Zilla Parishad at the district level. The Gram Panchayat elects members of the Nyay Panchayat. ग्राम पंचायत किसके मेंबर इलेक्ट करते हैं? जो थर्ड बॉडी थी न्याय पंचायत. द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द सरपंच. याद रखना. द एसपी हेड्स द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. In rural areas, land is the main source of income and the पतवारी looks after the land records. और पतवारी के ऊपर होते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और उसके ऊपर होते हैं फाइनली व्हाट? DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, DM यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड, चिल्ड्रन. So I hope you understood this lesson properly. I have explained this lesson in 3 parts, children. Part 1, Part 2 and Part 3. Go through the videos properly. Read the textbook. Underline the hard words. Go through the dictionary if you want. And learn the hard words. And whenever I send the notes, children, you have to complete it. Okay, children? Now we'll end of this lesson will come. Okay, thank you.